Good morning to all of you, dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So today is Tuesday and Thursday our math class is there, as you know that. So last class we started exercise 3.4 and some completed some questions. So now we have started exercise 3.4, the remaining question. So I think we completed two questions. So now we have started next third question. The third question is find the LCM of the following set of the number. Okay, by common division method. So in last class already we learned prime factorization method. पहले तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड करना है कॉमन डिवीजन मेथड. सो कॉमन डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम फाइंड करना है. So there are four questions. I will solve any two, and the remaining two you can. Okay. So the first one, what is the common division method? You have to write both number common 135 and 90 like this. Okay. This method is called common division method. So first divide by 2. 135 में तो नहीं जाएगा, तो 135 ऐसा कैसा 45. Okay. Then 5 या 3 से करो. 3 से 9. 3 4 जा 12 and 3 5 जा 15. Again 15. 3. 15 and 5. Then 3, 5 and 5. Last one 5, 1 and 1. When 1 is become, then your LCM is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3 multiply 5. 15 3 5 3 जा 15. 5 3 जा 15. 15 2 जा 30. 30 3 ja 90, 90 3 ja 270. This is your method, and this method is called common division method. Okay, I hope you understood very well. So next one more I will solve, that D1. Two more simple is there. First write 60, 40, 32 and 80. So 2 then 30, 20. यहाँ पे 16 और यहाँ पे कितना रहेगा 40. After that again 2, 15, 10, 8 and 20. Again 2, 15 में नहीं जाएगा, 10 में रहेगा 5 टाइम 4 and 10. Again 2, 15, 5, 2 and 5. Again 2, 15, 5, 1 and 5. Next 3, 5, 5, 1 and 5. Next last 5, 1, 1, 1 and 1. All become 1. So the LCM is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 and 5 times 2. After that 3 and 1 5. ये आपका क्या हो जाएगा LCM. इनका मल्टीप्लाई आपको करना है मेंशन, और इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका LCM आ जाएगा. This method is called common division method. Okay, I hope you understood. So take the screenshot and find the answer of this question, and the remaining two is your homework. Okay, take the screenshot. Okay students, so in the next question, so I told you that where you got the largest word, greatest word, maximum word, where you find the LCM. जहाँ पे भी आपको largest, greatest और maximum word दिखे वहाँ आपको फाइंड करना होता है LCM. और जहाँ कहीं भी आपको smallest, minimum, shortest word दिखे वहाँ आपको फाइंड करना है LCM. तो यहाँ पे क्या लिखा होता है smallest, find the smallest number. तो जहाँ याद दिलाना है जहाँ पे smallest, शॉर्टेस्ट, मिनिमम नंबर के ऐसा कुछ वर्ड आए वहां आपको फाइंड करना होता है LCM. क्या फाइंड करना होता है LCM. तो इन दोनों का आप LCM फाइंड कर लो और वो आपका आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसके अंदर, कोई भी एक मैं सॉल्व कर देता हूँ और रिमेनिंग टू आप कर दीजिएगा किसी भी मेथड से. ओके, तो फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ 32 and 72. देन 2 टाइम 16. आफ्टरवर्ड्स 36. अगेन 2 टाइम 8. देन 18. अगेन 2 टाइम 4. Then 9. Afterward 2 times 2 and 9. Again 2, 1 and 3. Then 3, 1 and here 9. 3, 3 and 1 and 1. So the LCM is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. It means 5 times 2,
2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, and that 2 3s are there, 2 3s. So this is your smallest number, smallest number. This is your smallest number. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 multiply 9, 9 to the 18, carry 1, 9 288. So this is the way to find out the smallest number, minimum number और shortest number. जहाँ पे भी smallest, shortest and minimum word आता है, there you have to find out the LCM. Okay, so take the screenshot and this is your homework. ये आपको homework में solve out करना है. Okay. Okay, so next question number 5th. There are 3 questions in 5th. So first one A1, find the smallest number. Smallest number. Just first word is smallest number means LCM. Which when divided by 24, 30, 64, leaving 4 as the remainder. तीनों के अंदर रिमाइंडर क्या बचता है 4. तो रिमाइंडर वाला हमने पहले भी किया हुआ है. जहाँ पे रिमाइंडर होता है वहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट फाइंड द न्यू नंबर्स. So न्यू नंबर्स तो न्यू नंबर क्या होने 24 minus 4 then 20, next 36 minus 4 then 32, and next 64 minus 4 then 60. तीनों के अंदर जो है वो कॉमन नंबर रिमाइंडर आता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, दैट इज योर आंसर. ओके, 2 then 10, 16 and 30, again 2 5 8 and 15, then 2 5 4 and 15, again 2 5 2 and 15, again 2 5 1 and 15, then 3 5 1 and 5, again 5 1 1 and 1 1 1 आ गया. तो आपका एलसीएम जो क्या हो जाएगा 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 5 times 2, 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2, 1 2 3 4 and 5, 1 2 3 4 5, after 1 3 and 1 5, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 2 40, 40 into 2 80, 80 into 2 60, sorry 160, 160 into 3 480. So your smallest number is number is 480. Okay, 24, sorry 480 not, I think so. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32, 32 into 3 32 into 15. Okay, so this is the way to solve this question. So take the screenshot and write in your notebook. Sorry students, one mistake happened. So you just cut before you write. इस क्वेश्चन को जो है इस स्टेप से नहीं करना है, इसका अलग मेथड है. ओके, फॉर एलसीएम के लिए आपको रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. एचसीएफ के लिए तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करके नए नंबर फाइंड करते हैं. आफ्टर दैट वो जो आंसर आता है वो आपका आंसर आ जाता है एचसीएफ. इसमें ऐसे नहीं करना है. इसमें आपको सीधे जो नंबर दिए हुए उनका एलसीएम फाइंड करना है और जो रिमाइंडर है उसको लास्ट में ऐड करना है. Okay, so this is the method. So first our number is 24, 36 and 64. So simply you just find out the LCM of this number. आप इनका क्या फाइंड कर लो, LCM. तो LCM फाइंड कर दिया इनका, तो LCM आएगा 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3, तो आएगा 576. अब लास्ट में LCM के केस में लास्ट में आपका जो रिमाइंडर है इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे. तो 576 प्लस 4 कितना आंसर आएगा 580. इसमें एचसीएफ की तरह सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो वाला पहले जो बताया वो रॉन्ग है, उसको कट कर देना. दिस इज द राइट मेथड. ये आपको लास्ट में इसको इसके अंदर 4 को ऐड करना है, तो 580. ओके, सो नाउ टेक द स्क्रीनशॉट एंड नाउ राइट इन योर नोटबुक. Okay students, so the next remaining 2 questions. A number is divisible by 24, 25 and 120. A number is divisible by 24, 25 and 120 if it will increase by 20. Increase by
20। तो अभी जो हमने किया उसके जैसा ही है, पहले आप एलसीएम फाइंड कर लो, जो एलसीएम आएगा उसके अंदर 20 को ऐड करना। ओके, सो फॉर द एलसीएम सॉल्यूशन यहां से करेंगे हम। एलसीएम कौन कौन नंबर है? 24, 25 एंड 120। फर्स्ट 2 then 12, 25 then 60, again 2 then 6, 25 30, again 2 3, 25 15. Now just divide by 3 then 1, 25 and 5. After that 1, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं वहां कर रहा हूं, आपको नीचे ही करना है। यहाँ पे 5 से क्या जाएगा? 1 5 and 1, 1 5 and 1। आफ्टर दैट 5 से 1 1 and 1, तो 1 1 मिल गया। तो आपका जो एलसीएम में क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 and 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5। So your LCM is 5 into 10, 5 into 10, or 2 into 3 6, 600. LCM is 600. So your number is जो आपका आया है उसके अंदर उस 20 को इंक्रीज मींस ज्यादा देन 20 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा? 620। 5 into 10, 5 into 10, 3 into 6। Same here, a number is divisible by 16, 25 and 75। इन तीनों से डिविजिबल है, that decrease by 10। तो जहां पे डिक्रीज है वहां पे क्या करना है आपको? माइनस। ओके, तो पहले आपको इनका एलसीएम फाइंड करना है। सो एलसीएम के लिए 16, 25 and 75, again 2 से 8 times, then 25 and 75, again 2, then 4, 25 and 75, again 2, then 2, 25 and 75, again 2, then 1, 25 and 75। after that यहाँ पे कितना आएगा? 5 से देंगे कितना आएगा? 1 5 and 15, again 5 1 1 and 3, again last 3 1 1 and 1। तो आपका जो भी एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। तो आप इनका मल्टीप्लाई करोगे 5 into 2 10 and 5 into 2 10, 100 100 and 2 into 2 4, 4 into 3 12, 1 2 0 0 1 2 0 0 ऐसे आएगा। इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो आपका जो नंबर है दैट नंबर 1200 minus 10 मतलब 1190, दैट इज योर नंबर। ओके, तो इनमें भी ऐसा जहां पे इंक्रीज है वहां पे ऐड करना है, जहां पे डिक्रीज है वहां पे माइनस। फर्स्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर, आफ्टर दैट इफ इंक्रीज वर्ड इज देयर देन यू ऐड, और आफ्टर दैट इफ डिक्रीज वर्ड इज देयर देन यू सबट्रैक्ट। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट हियर नोटबुक। Okay students, so the next question. Okay, next one, find the number between 700 and 800। 700 and 800 के बीच में आपको नंबर फाइंड करना है which is divisible by 12, 15 and 24। इन तीनों से इसके अंदर क्या जाता है? डिवाइड। तो सबसे पहले तो आप नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लो। 12 15 and 24, 2 times then 6, 15 and 12 times, after that 2 3, 15 and 6, again 2 times 3, 15 and 3, after that 3 times 1, 5 and 3, sorry 1, after that 5 times 1, 1 and 1। so the LCM is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5, 5 into 2 10, 10 into 2 20, 20 into 2 40, 40 into 3 120, 120। ये आपका एलसीएम है। तो 120 के अंदर जो है इस तीनों से डिवाइड जा रहा है, लेकिन बट we have to find between 700 and 800, so we have to write the multiple of 120, multiple of 120। 120 के मल्टीपल अपने को मेंशन करना है, मतलब 120 का टेबल। तो 120 के टेबल पहला नंबर कौन सा था? 120 1 जा 120, 2 जा 240, 3 जा 360, 4 जा 600, after that 7200, 720, फिर 840, 960, फिर 1200। ओके, तो इसमें से देखो 700 बिटवीन
700 एंड 800, 700 800 बिटवीन नंबर कौन सा है? 720. सो योर आंसर इज 720. इसका मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? 720. So take the screenshot and write in your notebook. The remaining question is all like this. You have to find out just the LCM of the questions. बाकी सारे बचे हुए वो ऐसे के ऐसे ही है. तो do one thing, just cut the question number 10. No need to solve all questions. Okay, so you just cut the question number 10. 10th वालों को आप क्या कर दो? कट कर दो. No need to solve all questions. Similar reason are there. So just cut the question number 10. Not important in due to the exam we are not convinced. Exam. Okay, so now the remaining 7, 8 and 9 is your homework. Question number 7, 8 and 9 is your homework. I will read and I will explain. Devika visit a signer after 45 days. देविका जो एक साइनर के पास जाती है आफ्टर 45 डेज. मेनका विजिट आफ्टर 30 डेज एंड कनिका विजिट आफ्टर 60 डेज. तीन लड़कियां हैं, तीनों जो है डेज 45, 30 और 60 डेज के बाद जाती है. वन डे दे मीट, एक दिन में मिलती है. दे मीट साइनर टुगेदर, एक दिन दुकान में मिलती है चारों तीनों जन एक साथ में. आफ्टर हाउ मेनी डेज विल मीट अगेन, कितने दिन बाद जो है वापस में मिलेगी. तो क्या फाइंड करना है आपको? एलसीएम. तो इस 45, 30 एंड 60 इन तीनों का एलसीएम फाइंड कर लो आप, और आपका एलसीएम जो होगा उतने दिन बाद वो आपस मिलेगी. डेज उसके पीछे आप लिखना. पहले तो एलसीएम फाइंड कर लो, फिर आप मेंशन कर देना दैट आफ्टर दैट डेज दे विल मीट टुगेदर. ओके, सो एलसीएम भी फाइंड करना है. नेक्स्ट, अ बैग कंटेन एप्पल्स इनटू अ स्मॉल बॉक्सेस 24, 30 एंड 36 एप्पल्स. एक बैग के एप्पल्स को स्मॉल बॉक्सेस में पैक करना है. एक बैग में 24 एप्पल है, एक में 36, एक में 36. 24, 30 and 36. Find the minimum number of apples in the bag. Minimum number of apple. I told you that minimum, smaller and shorter. वहाँ पे क्या फाइंड करना है? LCM. तो आपको 24, 30 और 36 का LCM फाइंड करना है, और जो भी LCM आएगा that is your minimum number of apple in the bag. Okay. So next also flashing bulb. A flashing bulb on a Christmas flash ट्री एवरी 10 सेकंड. 10 सेकंड बाद वो क्या होता है? फ्लैशिंग बल्ब है, फ्लैश होता है 10 सेकंड बाद. द अनदर बल्ब फ्लैश एवरी 15 सेकंड. एक और बल्ब है वो 15 सेकंड बाद फ्लैश होता है, और एक और बल्ब है वो 24 सेकंड बाद फ्लैश होता है. ये वो ऊपर वाला जो देविका 3 गर्ल्स वाला किया अपन ने, ये वैसा का वैसा ही है. आपको क्या करना है? एक साथ कब फ्लैश होगा? तो एलसीएम फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है आपको? एलसीएम. सो जस्ट फाइंड द एलसीएम ऑफ द 10, 15 एंड 24. आफ्टर दैट यू राइट दैट आफ्टर 15 मिनट, और जो भी आंसर आएगा आपका आफ्टर दैट मिनट द बल्ब विल फ्लैश टुगेदर. ओके, तो ये 3 क्वेश्चन जो है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. इफ केवल और केवल आपको एलसीएम ही फाइंड करना है. जस्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द numbers. Okay, if you are having any doubt then afterwards you can ask. Okay, thank you and today's class is over. Thank you.